findings can act or opaque too. So, if the ये surface of any object, be it transparent or opaque, is plain and smooth, images are formed. Any polished or shiny surface can act as a mirror. Do you know? समझ आया कि मिरर के तौर पर कोई भी पॉलिश सरफेस जो है वो अमल कर सकती है। What happens when light falls on a shiny and polished surface, such as a mirror? Let us find it out together. Let's अब ये कह रहा है observe कि जब किसी पॉलिश सरफेस या मिरर पे रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, तो देखते हैं। hold a mirror in his hand and stand at one corner of the room. Let the second person stand at the another corner of the room. Let the third person hold a torch and cover the glass of the torch with fingers and switch it on. Let him get a beam of light by leaving a small gap between the fingers so that light can pass through that. Let him direct the beam of the torch light onto the mirror that the first person is holding. What do we see? We see a patch of light on the other side. तो आपको बेटे यहाँ पे क्या नजर आएगा, एक रोशनी का धब्बा नजर Now आएगा, the सही है ना। person can adjust the direction of the torch आप एडजस्ट so करके इसको that डाल सकते हो the आगे। patch of तो आपने light क्या किया, falls रोशनी on की the डायरेक्शन को second चेंज कर person दिया। standing in the room. Wow, interesting to watch, isn't it? So, what do we conclude now? The mirror changes the direction of the light that falls on it. Not just the mirror, any other polished and shining surface, like a shining stainless steel plate, can change the direction of the light. This change of the direction by the mirror or the light coming back after hitting a smooth plane surface is called the reflection of light. तो ये बेटे जो रोशनी का किसी सरफेस पे टकरा के वापस पलट आना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन दे दी उन्होंने। सो आगे देखते हैं क्या। So, the image we see in the mirror is called the reflection. तो जो आप अपने इमेज दे रहे We हो, can बेटा see our रिफ्लेक्शन देख लो। image or reflection in clear water too. Hence, the surface of water can also act like a mirror and change the direction of the light. In the story too, Sona used the reflection of the shiny red toy with polished surface having the shape of a monster to scare away the thieves. ये बच्चे खिलौने हैं तो बना के उड़ा देते हैं, तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। That was a good trick, huh? You might think, why is that? When light is reflected by highly polished surface like mirror, clear images are formed, while the images formed when the light is reflected by rough and uneven surface are not very clear. लेकिन बेटा रिफ्लेक्शन ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सरफेसेस से नहीं होता, बल्कि रफ सरफेसेस से भी रिफ्लेक्शन होता है। अब जो स्मूथ से होता है वो तो आपको मिरर में नजर आ रहा है, लेकिन जो रफ सरफेसेस हैं उनसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से आप इस काबिल होते हो कि आप अपने कमरे को रोशन कर लेते हो, या सूरज की रोशनी से हमारे कमरे रोशन हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। Let us observe the mirror carefully. You will be surprised to know that a mirror which looks very smooth also has bumps. You know, at a microscope, that when the light is reflected by rough and uneven surface are not very clear. Let us observe the mirror carefully. You will be surprised to know that a mirror which looks very अब ये देखो बेटा, ये भी इधर से थोड़ा बहुत खुरदरा होता है मिरर, ये नहीं है कि बिल्कुल ही प्लेन होता है। तो ये आप smooth also has bumps. You know, at a microscopic level, that is, when we watch it under the microscope, all surfaces have bumps. बम्प्स। They are not smooth actually. Highly polished surfaces like mirror have smaller bumps, whereas rough surfaces have much larger bumps. So, what is the role of these bumps? The smooth surfaces have
मजा स्मूथ सरफेसेस जो होते हैं बड़े जिस एंगल पे लाइट आकर टकराती है उसी पे वापस भेज देते हैं, लेकिन रफ सरफेसेस की करती हैं ऐसा नहीं करती. So we can see the clear image of the object. Objects that are shiny, such as metal pots and mirrors, reflect light better than the rough objects which absorb more light. Now, coming to rough surfaces. When light falls or hits on a rough surface with bumps, it bounces off in many directions and back to our eyes. We see our reflections, but they are distorted and not clear. This kind of reflection is called diffuse reflection. Interestingly, this is the type of reflection that helps us to see most of the things around us, as the surface cannot be perfectly smooth normally. So now you can तो ये बेटा जो understand उन्होंने that बताया why आपको, mirror whose surface has become rough cannot produce clear image. हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हम बेकायदा फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखते हैं. In this case, as the surface is smooth, the light is reflected at different angles and so the image formed is not clear than the rough objects which absorb more light. Now coming to rough surfaces. When light falls or hits on a rough surface with bumps, it bounces off in many directions and back to our eyes. ऐसे ही. We see our reflections, but they are distorted and not clear. This kind of reflection is called diffuse reflection. Interestingly, this is the type of reflection that helps us to see most of the things around us, as the surface cannot be perfectly smooth normally. So now you can understand why mirror whose surface has become rough cannot produce clear image. In this case, as the surface is no longer smooth, the light is reflected at different angles and so the image formed is not clear. The more rough the surface becomes, the more unclear or blurred is the image. What is a mirror actually? Can we make a simple mirror? और ये सिर्फ ये मिरर की क्या है उसके बारे में बताएंगे आपको. Yes, we can. Actually, it is a plain glass which is silver plated. इसके ऊपर कोटिंग की होती है सिल्वर की, चांदी Plain की. glass provides the smooth surface and the silver coating makes it shiny. जो सिल्वर कोटिंग होती है वो उसको शाइनी बना देती है और ये प्लेन सरफेस का काम करता है जो ग्लास है. Now, how to prevent light going through the mirror? Well, for this, you will अब find आपको उसके behind पीछे बेटे ब्लैक पेंट भी नजर आता है, वो पेंट क्या करता है रोशनी को पास होने से रोकता है, तो आपको फिर अपना चेहरा नजर आता है, रोशनी उसमें से पास नहीं हो सकती. silver coating, there is also red paint. The red paint also protects the silver coating from getting scratched. तो पहली बात इसका काम इसकी हिफाजत करना सिल्वर कोटिंग की, और दूसरा रोशनी को ना पास होने देना. Interesting to know and simple too, isn't it? To sum up, now we know how to change the direction of light and what is reflection. The light travels in a straight line and the mirror changes the direction of light that falls. तो समझ आएगा मिरर क्या करता है, रोशनी की डायरेक्शन को चेंज करता है. अब ये कैसे चेंज करता है? बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन. on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. Any polished or shiny surface, say like water too, can act like a mirror and reflect to get clear images. When the reflection is by the rough surfaces, the images formed are not clear as the light gets reflected in various directions. And lastly, not to forget, a simple mirror is a plain glass only which is silver plated to make it shine. Have fun and enjoy. Bye bye kids. ठीक है जी, तो ये बेटा कुछ रिफ्लेक्शन. अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो अपना इमेज देखते हैं या हम जो दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, ये सारा का सारा बेकायदा रिफ्लेक्शन होगा.
क्यों रोशन होता है बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। प्रॉब्लम किसी को थोड़ा याद रखिएगा, जो मिरर है वो रोशनी की डायरेक्शन को चेंज करता है। जो वीडियो का लंबे बात है कि मिरर चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो मिरर की लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन आपकी बुक से पहले देखिए कि when waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. आपके पास ये एक सरफेस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, बात समझ आई? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दूसरा कहता है फिनोमेना इन व्हिच waves moving in one medium fall on the surface of another medium and bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection is called, ठीक है, is called reflection। उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये बुक की समरी से ली थी, when a wave traveling from one medium falls on the surface of another medium, it may bounces back into the first medium. This phenomena is called reflection of waves। या सादा अल्फाज में the bouncing back of waves after hitting a surface is called reflection। अब बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं आपके कोर्स में। पहली क्या, रे ऑफ लाइट क्या होती है? पहली बात क्या, तो आपने भी देखा था वेव फ्रंट्स के अंदर हमने देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट्स के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ये वेव फ्रंट्स थी आपकी। हमने यही इस स्लाइड के ऊपर, ये यहाँ पे जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने ये देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा असल में एक ऐसी एरो हेडेड लाइन जो शो करे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को, दैट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। तो ये पहली डेफिनेशन है कि रे ऑफ लाइट क्या होती है? ए लाइन। अब आपको पता है हकीकत में आप यहाँ पे तो सारे के आपको तो लाइट की जो वेव्स हैं, जो वेव फ्रंट्स हैं, वो तो आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम अपने काम को मजीद आसान करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो करते हैं एक लाइन के जरिए से। तो लिखा है लाइन विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट और वेव इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट और रे। सो बीम ऑफ लाइट क्या होती है? दो या दो से ज्यादा जो आपकी रेज ऑफ लाइट है, इनके कलेक्शन को बीम कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे क्या होती है? अब वो रे जो आगे आपकी सरफेस पे टकरा रही होती है, the ray which is hitting the surface। The definition light ray hitting a surface is called the incident ray। इधर उर्दू में शुआए वुकूआ कहते हैं, शुआए वुकू। रे को उर्दू में क्या कहते हैं? शुआ कहते हैं, और उर्दू में इंसिडेंट को वुकू कहते हैं, आने वाली, वाक़ई होने वाली। ये आपका बेटा क्या, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसे कहते हैं शुआए इनकास, शुआए इनकास, मुनक्किस होने वाली, पलट कर वापस आने वाली। और दिस इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या था? पॉइंट एट विद द रे इज हिटिंग इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द हिटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी बातें भी आपकी बुक पे भी आपको मिलेंगी। तो अब नॉर्मल क्या है? लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सरफेस। हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉ की जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का है, इसे नॉर्मल कहते हैं। या ए परपेंडिकुलर line drawn to a surface is called the normal to the surface। reflected ray क्या होती है? light ray reflected from the reflecting surface is called the reflected ray। this is the जो ray bounce back कर जाती है, that is the reflected ray। angle of incidence क्या बेटा? आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि व्हाई नॉट दिस एंगल? ये वाला एंगल क्यों नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये वाला एंगल समझ आ? इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों नहीं कहते? क्लियर है नहीं क्लियर? समझ आ? फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद एक और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? कि बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर माइंड में एक सवाल आपके पैदा होगा कि व्हाई नॉट दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ये एंगल क्यों नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो इसके जवाब अभी इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स पे आपको मैं देता हूं। इसी तरह बेटा ये डेफिनेशन दे दी थी, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे क्या? रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है वेव्स की कि द बेंडिंग ऑफ वेव्स एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन।
अब ये बेंडिंग जो हो रही है, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये तो इंसिडेंट रे है, ये जो रे बेंड कर रही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे की डेफिनेशन आ गई इसकी। रे दैट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद बेटा हमारा एक थ्योरम आ गया। अब इस थ्योरम में क्या, द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द बिटवीन टू अब ये दो लाइंस के दरमियान में एंगल और उन पर मौजूद जो नॉर्मल्स हैं, जो परपेंडिकुलर्स हैं, उनके दरमियान में एंगल, ये थ्योरम कहता है इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये एंगल सॉरी लाइन OA है और ये लाइन जो है OB है, अब आपको पता OA और OB के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। अब ये लाइन OC इज द परपेंडिकुलर ऑन द OA। ये एक लाइन मैंने इन दोनों में एक एक लाइन लगाई है, एक एक कट लगाया है ताकि पता चल जाए कि OC इज द परपेंडिकुलर ऑन OA और जो OB है इस पर परपेंडिकुलर OD है। समझ आ गया? अब हमने ये मेजर करना वाकई ये एंगल थीटा है या नहीं, तो देखते हैं। हम ये फर्ज कर लेते हैं, इसका प्रूफ भी साथ ही दे देता हूं। प्रूफ में क्या, दिस एंगल इज थीटा। हां भाई, दिस एंगल इज थीटा, जो एंगल BOA इज थीटा, थीटा ही है ना। अब उसके बाद बेटा आपको ये मेरे बात से सुनिएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला यहां से यहां तक टोटल कितना है, 90 डिग्री ना। यहां से लाइन OC तक एंगल 90 डिग्री है। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो आपके पास जो एंगल COA है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, एंड दिस COA, because you know that angle COA is equal to angle COB, magnitude of angle COB plus the magnitude of angle BOA. So we can replace this by these, the sum of these two angles. So I will write the magnitude of angle COB plus the magnitude of angle BOA is equal to 90 degrees. And you know that the magnitude of angle AOB, yeah, BOA is theta. You will write here theta. Magnitude of angle COB will be equal to 90 degrees minus theta. Clear? So this angle is equal to 90 degrees minus theta. ये वाला एंगल जो है आपका, ये छोटा वाला एंगल जो है, this is 90 degrees minus theta. अब ये वाला एंगल आपके पास आ गया। मैं इस एंगल जिसका नाम हमारे पास क्या है, यहाँ से भी थीटा माइनस कर देते हैं, ये कर देगा, तो जो एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COB इज इक्वल टू थीटा। ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि आपके पास, आपको ये पता है आपका एंगल BOD जो है 90 डिग्री। सो यू नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यू आल्सो नो दैट, अब आपने ये वाला एंगल निकालना है, ये जो एंगल BOD है, because magnitude of angle BOD is equal to magnitude of angle BOC plus magnitude of angle COD। ठीक है जी। हम यहाँ रिप्लेस करते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COD जो कि हमने निकालना है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल BOC, both are equal to 90 degrees, and this angle you know from this equation number 1 is equal to 90 degrees minus theta। ये किसके बराबर है, 90 degrees minus theta के बराबर है, हमने प्रूव भी किया पीछे से। सो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COD प्लस 90 degrees minus theta जो कि इसकी वैल्यू आ गई, दिस होल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या होगा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COD जो कि हमें पता करना है, यहाँ 90 डिग्री, ये 90, यहाँ से जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COD प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स 90। तो 90 को उठा कर ले आऊं, माइनस हो जाएगा, थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू थीटा। ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई सी दो लाइंस के दरमियान में एंगल थीटा है, तो उन लाइंस पर जो दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए हैं उनके दरमियान में भी एंगल थीटा होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद बेटा रिफ्लेक्शन जो है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। मेरा एक सवाल है आपसे,
जो कि हमने यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछे यहाँ पे कि व्हाई द एंगल बिटवीन द वेव एंड द सरफेस इज नॉट मेजर्ड। आपने पहली बात तो देखो आपके पास जो यहाँ पे आप शक्ल में देखें तो आपके पास यहाँ पे ये वेव फ्रंट्स आ रही है ना। आप जो एंगल मेजर कर रहे हो वो किसके साथ मेजर, रे और नॉर्मल के दरमियान मेजर कर रहे हो, समझ आया। आप एंगल हालांकि एंगल तो मेजर होना चाहिए था वेव फ्रंट, बात सुनो ना, एंगल किसके दरमियान में, अगर ये आपके पास बैरियर है और ये वेव फ्रंट्स आ रही है, ये वेव फ्रंट्स आ रही है, एंगल तो असल में वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान में मेजर होना चाहिए था। आप एंगल मेजर कर रहे हो रे और नॉर्मल के दरमियान में। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कि व्हाई द एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द सरफेस इज नॉट मेजर्ड। हालांकि एंगल जो है वो वेव फ्रंट्स, यहां पे से वेव फ्रंट्स आ रही होगी यहां से लाइक दिस, क्लियर हुआ। तो हमें तो ये वाला एंगल मेजर करना चाहिए, हम रे का एंगल मेजर कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब, बात समझ आई थोड़ी बहुत कि असल में हमारे पास तो वेव फ्रंट्स हैं और हमें एंगल सरफेस और वेव फ्रंट के दरमियान मेजर करना चाहिए कि जिस एंगल के साथ वेव फ्रंट आके सरफेस के साथ टकरा रही है उसी एंगल से वापस आना चाहिए उसे। लेकिन हमें एंगल किसका दे रहे हैं, हमें जो एंगल मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, रे का, कि रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल हम मेजर कर रहे हैं। तो बेटा बात याद रखिएगा, अभी मैंने बताया अगर आपके पास ये वेव फ्रंट्स है, ये इसका आंसर है, अगर हमारे पास ये वेव फ्रंट्स है तो जो रे होती है वो वेव फ्रंट्स के साथ कितने डिग्री के एंगल में आती है, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब मैं जरा यहाँ पे छोटी सी एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक सरफेस है हमारे पास जिसे हम बैरियर कहते हैं, इसके साथ जो हमारी वेव फ्रंट्स हैं वो आगे टकरा रही हैं। ये वेव फ्रंट है, ये आगे टकराई, मैं सिर्फ एक को लूंगा, यहाँ तो बहुत सारी आ रही है ना, हम सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो वेव फ्रंट एंगल थीटा के साथ आगे टकराई है सरफेस के साथ, जो कि ये एंगल मेजर करना हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वेव तो मूव कर रही होती है। तो क्योंकि पीछे जब हमने भी थ्योरम पढ़ा कि द एंगल बिटवीन, हमारे पास दो लाइंस के दरमियान में एंगल और उन लाइंस पर मौजूद, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, इस लाइन के है, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा जी, ये है। क्लियर हुआ, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर। तो जो एंगल इन दो लाइंस के दरमियान में होगा वही एंगल इन लाइन पर मौजूद परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी होगा। क्लियर हुआ, ये वाला थ्योरम हम यूज करते हैं। देखो आपको ये पता है कि आपकी जो वेव फ्रंट ये पीछे से आ रही हैं, वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन को कौन शो करती है, रे, और रे जो है वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। अब एंगल आपने मेजर करना था वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान में। आपको ये पता है कि जो आपकी रे है वो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के आके उसने स्ट्राइक किया, हिट किया सरफेस को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम भी सरफेस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। इसको हम नॉर्मल का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ। अब बेटा अभी आपने ये थ्योरम पढ़ा, असल में एंगल, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, मेरी बात सुन रहे हो ना, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दो लाइंस के दरमियान में एंगल। क्लियर हुआ, ये थीटा आ गया जो कि एंगल बिटवीन द सरफेस एंड वेव फ्रंट है। अब गौर से देखिएगा, ये जो रे है, रे ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट पे, और जो नॉर्मल है वो किस पे परपेंडिकुलर है, सरफेस पे। आपको ये पता है कि वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान एंगल कितने डिग्री का, थीटा डिग्री से। क्लियर है। तो दो लाइंस के दरमियान में आपको एंगल पता चल गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो रे है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है और जो नॉर्मल है वो किस पे परपेंडिकुलर है, सरफेस पे। तो इसका मतलब जो रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल होगा वो भी किसके बराबर होगा, वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे जो दो लाइंस का काम कर रही हैं आपकी वेव फ्रंट और सरफेस कर रही हैं, और जो रे है और नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर्स का काम कर रहे हैं ऑन द लाइन। समझ आ रही है। अब जो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है वो रे है और जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। समझ आ गया। तो नॉर्मल और रे दोनों परपेंडिकुलर हैं और लाइंस का काम कौन कर रहे हैं, आपकी लाइन नंबर 1 इसको L1 कह देता हूं। लाइन नंबर 1 आपकी वेव फ्रंट है और लाइन नंबर 2 आपकी सरफेस है। आपका परपेंडिकुलर नंबर 1 P1 क्या आपकी रे है
और आपका परपेंडिकुलर नंबर 2 जो है वो आपका नॉर्मल है। तो जो लाइन L1 और L2 के दरमियान में एंगल है वही एंगल किसके दरमियान में होना चाहिए, P1 और P2 के दरमियान में। ये हमारा थ्योरम इम्प्लाई करता है, समझ आया। और ये अब बड़ा प्रैक्टिकली ये वाला एंगल मेजर करना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा रिपल टैंक के अंदर वेव्स आ रही हैं, वो मूव कर रही हैं, और वो मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर हम क्या करें, वेव की डायरेक्शन को शो करने वाली लाइन के दरमियान में और सरफेस पे नॉर्मल के दरमियान में हम एंगल मेजर कर लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। हमने ड्रॉ करना और एंगल मेजर करना, ये वही। अब अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम ये कितना मुश्किल है ये वाला एंगल मेजर करना और कितना मुश्किल है इन वेव फ्रंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जो कि वेव फ्रंट्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी और क्या शो कर रही थी, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। और ये जो नॉर्मल है, वैसे थोड़ा सा एक और अंदाज में इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये जो रे है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को शो करती है कि वेव्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं। और जो नॉर्मल है ये बता रहा है सरफेस किस डायरेक्शन में फोर्स, डायरेक्शनल फोर्स याद है ना, सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस होती है डायरेक्शनल फोर्स। तो बेटा ये किसको शो कर रहा है, सरफेस किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, समझ आ लिया। तो आपने क्या किया, बजाय इसके आप वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान में एंगल मेजर करो, ये एंगल वही होगा जो रे और नॉर्मल के दरमियान में होगा। अब मैंने एक सवाल उठाया था कि आप ये वाला एंगल क्यों नहीं मेजर करते, नीचे पूछे ना, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रे इज मेजर्ड। रे और नॉर्मल के दरमियान में एंगल मेजर होता है, एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड सरफेस क्यों नहीं मेजर होता। जवाब मिल गया कि मेजर वही एंगल हो रहा है कि आपकी वेव फ्रंट और सरफेस के दरमियान वाला एंगल मेजर हो रहा है, रे और नॉर्मल के दरमियान में, समझ आया। क्यों, क्या जवाब क्या है, क्योंकि रे जो है वो शो करती है आपकी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर और जो नॉर्मल है वो शो करता है आपकी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो जो एंगल आपकी वेव फ्रंट और आपकी सरफेस के दरमियान में होगा वही एंगल आपकी रे और नॉर्मल के दरमियान में होगा। बात समझ आई नहीं है। तो ये हम असल में वही एंगल मेजर कर रहे हैं, कोई दूसरा एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं। और रे को ट्रीट करना हमारे लिए आसान है और इतनी ज्यादा वेव फ्रंट्स को ट्रीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पहली बात तो अगर हम वेव फ्रंट्स ड्रॉ, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है। पहली बात, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दिस एंगल, ठीक है, ये ड्रॉबैक्स है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर व्हाट, टू मेजर द एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द सरफेस। क्लियर हुआ। फिर एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रे इज मेजर्ड। हम रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल मेजर करते हैं, तो क्या आपको पता है जो एंगल आपकी, इसका जवाब क्या है, द एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द सरफेस is equal to the angle between the ray and the normal। तीसरा सवाल ये, the angle between the ray and the surface is not measured। तो बेटा जवाब ये है क्योंकि जो एंगल बिटवीन द रे और सरफेस होगा वो इस एंगल के बराबर नहीं होता। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रे बराबर होता है एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द सरफेस। सो अब ये एंगल कितना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ आया नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल उसके बराबर नहीं है, असल में ये एंगल उसके बराबर है। सो देयरफॉर वी मेजर दिस एंगल। प्रॉब्लम